Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 8th class, and in this lecture we are to discuss chapter 1, topic Functions of Nervous System. Various actions controlled by nervous system, which may be voluntary or involuntary, they will be discussed, and reflex action will also be discussed in detail. Whatever stimulus is there, it may be heat, it may be sound, it may be light, or anything it may be there. Stimulus is any change in the environment which is detected by sense organs. Our sense organs, which are called receptors. Receptors, what are receptors? Examples: eyes, nose, tongue, skin, ears. These are receptors. They detect the stimulus. Then nerve impulse is produced in the sensory neuron. This nerve impulse is carried by sensory neuron to central nervous system. Inside the central nervous system, interneurons are there. They receive this information from sensory neuron and after interpretation send nerve impulses, which are instructions, which are messages through motor neurons. They are sent to effectors. Here it is a motor neuron. I am highlighting it. It is motor neuron here. It is carrying instructions from central nervous system to effectors. Now, when effectors receive this information, they respond. And effectors' response, I explained to you, if they are muscles, they will contract or they will relax. And if they are glands, they show response by producing secretions. I'm repeating these steps which are there in the working model of brain, working model of our nervous system. पहला स्टेप क्या है? स्टिमुलस को हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, जिसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स की सूरत में प्रोड्यूस होती है. सेंसरी न्यूरॉन इस नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटरन्यूरॉन्स होती हैं जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं और वो इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स की फॉर्म में मोटर न्यूरॉन्स कैरी करती हैं और मोटर न्यूरॉन्स उसको आगे ले जाएंगी इफेक्टर्स की तरफ. इफेक्टर्स जो हैं वो रेस्पॉन्स शो करते हैं. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो सेम यही चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं. ये देखिए पहला स्टेप था इसका, आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. स्टिमुलाई प्लूरल है, स्टिमुलस जो है वो ये सिंगुलर है. फिर सेंसरी न्यूरॉन्स इस नर्व इंपल्स को जो भी मैसेजेस थे स्टिमुलाई से रिगार्डिंग, इनको वो आगे पहुंचाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. देखिए बेटे ये यहाँ पे मेंशन्ड है. आफ्टर दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें इंटर न्यूरॉन्स होती हैं. वो इन न्यूरॉन्स इन नर्व इंपल्सेस को इंटरप्रेट करने के बाद मैसेजेस प्रोड्यूस करती हैं और वो मोटर न्यूरॉन्स को दे देती हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इन इंफॉर्मेशंस को आगे ले जाती हैं इफेक्टर्स की तरफ और इफेक्टर्स which are muscles or glands, they show responses. Now it will be clear to you all, I think. Anyhow, I repeat it again. It's a very important question. That's the working model of nervous system. These are steps of working of nervous system. पहला स्टेप क्या था कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो कि रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं. एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं जो कि स्टिमुलाई कहा गया उनको डिटेक्ट करते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है. ये जिस तरह देखें बेटे यहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया है, ये हीट, कोल्ड,
pressure, sound waves. These are examples of stimuli. ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स की सूरत में सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन्स इसको इंटरप्रेट करती हैं और इंफॉर्मेशन फिर बाद में ट्रांसमिट कर देती हैं नर्व इम्पल्सेस को मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। मोटर न्यूरॉन्स इसे कैरी करेंगी टुवर्ड्स इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स जो कि मसल्स या ग्लैंड्स हैं, जब उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेंगे। It was working model of nervous system, different steps I explained here. Next, about reflex action. Before explaining reflex action, let me explain types of actions. Two types of actions are there which are controlled by nervous system. These are voluntary actions and involuntary actions. Voluntary actions are those which are performed under our conscious control. For example, speaking, eating, reading, walking, running. These are all explained here. These are mentioned here. These are the voluntary functions which are performed according to our will, which are under our control. So they are called voluntary. That is why they are called voluntary. While other functions which are involuntary, these are those functions which are performed without the involvement of our consciousness, in which our will is not involved. For example, heartbeat, the heartbeat, breathing, blinking of eyes, movement of intestine, etc. These are functions which are considered involuntary actions, and these are not under our conscious control. I am repeating its explanation. दो तरह के एक्शंस हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। वॉलंटरी एक्शंस वो हैं जो कि हमारी मर्जी के ताबे होते हैं, जिसमें स्पीकिंग है, ईटिंग है, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग, वॉलंटरी, सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, जिनमें हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लिंकिंग आइज की है, आंखों का चिपकना, मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये सारे इसमें आते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस की कैटेगरी में। ये हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होते। नाउ आफ्टर दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? In other slide, you can check a reflex action model. It is there. Immediate and automatic response to any stimulus is considered reflex action. Immediate, फौरन किसी स्टिमुलस को जब हम फौरन रेस्पॉन्ड करते हैं, immediate, sudden response, it is called reflex action. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कैसे होता है? इसमें बहुत थोड़ी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं। इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया जा रहा है। एग्जांपल इज द टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। आप इसको देखें कि जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया जाएगा, तो हमारे स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। वहां की जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके अंदर नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी। ये नर्व इम्पल्स इस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन कलर में शो की हुई है, इस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे ट्रेवल कर रही है और ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये इंटरन्यूरॉन है। इंटरन्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है, उसको इंटरप्रेट करती है और फौरन ऑर्डर जो है वो इस मोटर न्यूरॉन को दे देती है। अब ये मोटर न्यूरॉन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जा रही है और उसके बाद ये इधर अब इफेक्टर के अंदर एंटर हो रही, जो कि मसल है,
ये फैक्टर यानी मसल सडन कंट्रैक्शन शो करेगा, एंड ऑन इट्स सडन कंट्रैक्शन आवर हैंड इज एट वंस विथड्रॉन. नाउ व्हाट इज द importance or what is significance of this reflex action? It avoids from serious injuries or serious damage to our body. हमारी बॉडी को कोई शदीद नुकसान नहीं हो सकता. अगर आप देखें कि ये प्रोसेस इतना जल्दी ना होता तो ये गर्म चीज को टच करने की सूरत में आवर स्किन में बर्न, स्किन की बर्निंग हो सकती थी. इवन कि आप ये थॉर्न प्रिकिंग की सूरत में देखें, कांटा जब चुभता है तो उस सूरत में भी ऐसे है कि पाँव में जब कांटा चुभता है तो हम फौरन पाँव को ऊपर उठा लेते हैं. तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन था. दर्द हमें थोड़ा बाद में महसूस होती है. दर्द कब महसूस होती है या इसी तरह हीट जो है वो कब महसूस होती है, ये देखें ये सारा काम रिफ्लेक्स एक्शन का स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है. स्पाइनल कॉर्ड ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है, और जब ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो तब हमें पता चलता है, और वो पेन हमें तब महसूस होती है. इट वाज अबाउट reflex action. Next is there excretory system. Your nervous system topic is completed up to here. Now if you have questions you can ask about rest of the things or about nervous system. Any question if you are to ask, I give you a chance. You raise your hands, I shall give you a chance. If you are to ask any question, you can raise your hands. I think no question is there from your side. Yes. Asan. Sir, you said. Isha is there. Yes. Sir, you. No, first Asan. Yes, Asan. Asan, bete. Sir, you said that the. सर हमने कहा था कि वॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते जी सर. लेकिन जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, हम कभी कभी तो खुद हो जाती है ब्लिंक, लेकिन कभी कभी तो हम खुद करते हैं ब्लिंक. हाँ बेटे, आप जब देखें आप बैठे होते हैं, आपके सामने आपका जो दोस्त है वो आई उसको ब्लिंक कर रहा होगा, आपने उसको काउंट करते रहना है कि 1 मिनट में कितनी दफा उसने ब्लिंक की है. उसके बाद उसने पूछना है कि आपने पिछले मिनट में कितनी दफा ब्लिंक की है. क्या वो आपको बता सकेगा? लेकिन कभी कभी खुद तो भी तो कर सकते हैं. कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती रहती हैं. कभी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहें, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. जिस वक्त हम उनके बारे में सोचेंगे कि हमने ये काम कंट्रोल करना है तो तब उनको कर सकते हैं. आप आइज की ब्लिंकिंग को देखें, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ना ब्लिंक करें या हम बार बार ब्लिंकिंग करते रहें, हम ऐसे कर सकते हैं. लेकिन जो यूजुअली हमारी आंखें ब्लिंक होती रहती हैं, क्या हम उसको सोच कर करते हैं? हम नहीं सोचते, हमारी थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही होती. लेकिन उसका फायदा क्या होता है, उन ब्लिंकिंग ऑफ आइज का फायदा क्या होता है, क्या बता सकते हैं? जो खुद होती है जी, जो खुद ब खुद हो जाती है, जो खुद ब खुद आंखें ब्लिंक करती रहती हैं, वो क्यों ब्लिंक करती हैं? नेचुरली इट इज देयर फॉर सम पर्पस. So I explain it to you. Its purpose is to spread the liquid on our eyelid to avoid dryness of cornea. कार्निया को खुश्क नहीं होने देती. ये जो ब्लिंकिंग है, इससे हमारे आईलिड्स के अंदर से जो लिक्विड है वो स्प्रेड होता रहता है उसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, आई बाल के ऊपर, और कार्निया खुश्क नहीं होता. ये इसका फायदा होता है. Any other question from your side? No. Okay. Now, next is the turn of Jannat. It is there. Yes, madam. Sir, can you define the central nervous system? Central nervous system. Nervous system
is divided into two parts. One is central nervous system, other is peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो सारी नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं या सेंट्रल नर्वस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरे जिस्म में स्प्रेड होती हैं, जिनको मैंने 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स का कहा था जो ब्रेन से निकलती हैं, और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ये सारी नर्व्स इकट्ठी मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर वैसे जनरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई और अपना फंक्शन है? देखिए बेटे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ही क्या है जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम अलग कर दें। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो उसके दो हिस्से हैं। ओके। Any other question? Jannat, you are clear? Okay. आमना अली बेटे। जिस तरह के आपने बताया कि कुछ एक्शंस इनवॉलंटरी होते हैं, कुछ वॉलंटरी होते हैं। Yes. तो सर जो कभी कभार ऐसे भी होता है जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी सांस रोक सकते हैं, हम अपनी ब्लिंकिंग और पल्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो उस वक्त वो वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी ही रहता है? फंक्शन वो इनवॉलंटरी है, फंक्शन इनवॉलंटरी है, क्योंकि हमने उस फंक्शन को इनवॉलंटरी कहना है जो आम हालत में ऑर्डिनरी स्टेट में जैसे परफॉर्म हो रहा हो। कभी कभार हम किसी फंक्शन को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है ऐसे फंक्शंस को, कुछ फंक्शंस को। उस वक्त वो वॉलंटरी होंगे जिस वक्त वो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, हमारी मर्जी के ताबे उस वक्त वो हो रहा है। जैसे आईज की ब्लिंकिंग को हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ऑर्डिनरी स्टेट, या सांस की बात आपने की, ब्रीदिंग है कि हम इसको रोक लें या हम इसको तेज कर लें, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ऑर्डिनरी स्टेट में देखें तो ये सारे फंक्शंस होते रहते हैं, वहां हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितनी दफा सांस लिया, या हमने सांस तेज कब किया था, हमारा सांस स्लो कितना था, या हमने सांस लेना है, हमने आंखों को ब्लिंक करना है, हमने कभी नहीं सोचा है इन कामों के बारे में, जबकि ये सारे काम हमारे हो रहे होते हैं। सर एक दफा कार्निया का दोबारा कर दें। कार्निया बेटे ये अपर लेयर होती है इसकी आई की, जो फ्रंट लेयर होती है, फ्रंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, आई बॉल के ऊपर होता है, और इसके ऊपर आईलिड्स जो है वो बार बार जब मूव करते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज के दौरान, तो जो लिक्विड होता है अंदर, जो टीयर ग्लैंड्स हैं लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड इनके ऊपर मूव करता है, तो उसकी वजह से ये ड्राई नहीं होने पाता कार्निया। ये फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है। जब आई का टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी को क्वेश्चन इसके बारे में भी आपको क्लियर नहीं तो आप पूछ सकती हैं आई के बारे में भी। क्लियर हो गया? यू आर क्लियर? यस सर। ओके, जिसका क्वेश्चन क्लियर हो जाए वो खुद ही म्यूट कर दिया करें मुझे। नेक्स्ट इज देयर एंड यू शुड लोअर योर हैंड। मरियम बेटे, मरियम सर मैंने आपसे पूछना था। हेलो सर। जी बेटे आवाज आ रही है आपकी। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये जो आप बता रहे हैं ब्लिंकिंग और, जी बेटे सर ये जो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। नहीं जी आ रही है आवाज, बोलें। बेटे बोलें, आपकी आवाज आ रही थी। नेक्स्ट,
हाजिक सलमान जी बेटे। Can you explain stimuli again? स्टिमुलस, Yes, sir. यस, स्टिमुलस किसी भी एनवायरमेंटल चेंज को कहते हैं which is detected by our receptors। अब चेंज क्या हो सकती है, जैसे हीट है, साउंड है, लाइट एक्स्ट्रा, ये सारी जो चेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जिनको हम महसूस करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम रेस्पॉन्सेस शो करते हैं, इन सब को हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई प्लूरल है, स्टिमुलस सिंगुलर था। हाँ जी, और क्वेश्चन? यस बेटे। ये नेक्स्ट कौन है, इनका नाम नहीं था, हुआवे लिखा हुआ है, अब मैंने अनम्यूट किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मिक्स न्यूरॉन क्या होते हैं? मिक्स नर्व्स होती हैं, मिक्स नर्व्स। मिक्स नर्व्स वो होती हैं जिनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होती हैं, यानी दोनों काम उनके होते हैं कि वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भी पहुंचाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस जो हैं वो इफेक्टर्स तक भी पहुंचाती हैं। नर्व कोई भी हो बेटे, ये बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, वो मोटर न्यूरॉन्स हो या सेंसरी न्यूरॉन्स हो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट, जन्नत, you have to ask any question, I think, again. Sir, can you repeat the cornea? कार्निया बेटे मैंने बताया कि आंख का जो फ्रंट पार्ट होता है, सामने वाला हिस्सा है, अपर पार्ट, आई बॉल के ऊपर पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। आई की जो लेयर्स होती हैं, स्क्लेराटिक, कोराइड और रेटिना, जो स्क्लेराटिक है उसका फ्रंट पार्ट कार्निया होता है। इसका काम है आई को प्रोटेक्ट करना और इसको वेट रखा जाता है उसके जरिए, ब्लिंकिंग ऑफ आइज के जरिए। क्लियर? यस। ओके। यस बेटे। हादिया रेशम। सर मैंने पूछना था पॉन्स क्या होता है? पांस? जी। ओके। हाइड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उसमें सेरिबेलम, पांस और मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो पांस का मैंने आपको काम बताया था, स्लीप, स्वेलविंग, यानी जो हम खाना खाते हैं इसको निगलना, या सोना, ये जो ट्रांजिशंस होती हैं ना, कि हम जाग रहे हैं फिर सोते हैं या सोए हुए जागते हैं, ये जो ट्रांजिशंस हैं इस प्रोसेस को पांस कंट्रोल करता है। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर? यस। एहसन तारिक, सॉरी अशना तारिक। हेलो सर। यस सर मुझे लेक्चर की समझ आ गई है, बस मैंने आपसे ना होमवर्क के बारे में कुछ पूछना था कि जो हमारी नोटबुक्स हैं उन पे कोई होमवर्क है जो हमने करना है, या पोर्टल पे हमें जो होमवर्क दिया हुआ है एमसीक्यू वगैरह। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सब बच्चे सुन लें होमवर्क के बारे में, कि आपने कॉपीज के ऊपर अगर पहले कुछ लिखा हुआ है दैट साल उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैंने नोट्स पूरे चैप्टर के भेज दिए हुए हैं उनमें से जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, मतलब नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड जो कुछ आप लिखना चाहते, जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लें ताकि कॉपी के ऊपर आपका महफूज रहे। अदरवाइज इन नोट्स का प्रिंट भी ले सकते हैं, नीट फॉर्म में आपके पास रहेगा, आप लिख लेंगी तो उसके प्रिंट लेने की फिर जरूरत नहीं होगी। जो क्वेश्चंस आपको भेजे गए हैं वो सारे याद करने हैं, और जो वर्कशीट भेजी गई उसकी मैंने की भी भेज दी हुई है, इससे आपके एमसीक्यू सारे कवर हो सकते हैं। क्लियर? यस सर, थैंक यू। मरियम सलमा। सर
यस बेटे बोलें। एग्जाम्पल वाली सर, उसमें फैक्टर्स और जो पेन रिसेप्टर्स है सर, उसके बीच में डिफरेंस बता देंगे? आप एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें तो बेहतर, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी। आप पेन डिटेक्शन के बारे में बात कर रही हैं, पेन रिसेप्टर्स का पूछना है। बेटे मेरी आवाज आ रही है? सर मैंने रिफ्लेक्स एक्शन की अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन और अफेक्टिव के बीच में मुझे डिफरेंस बता दें। इफेक्टर्स यानी मसल्स और ग्लैंड्स का फर्क पूछना चाहती हैं? बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। बेटे मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज, क्योंकि इफेक्टर्स और जो पेन रिसेप्टर है उसके बीच में डिफरेंस बता दें। रिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स, ठीक है मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी आवाज आ रही ना आपको? मेरी आवाज आ रही है? बेटे कैन यू लिसन मी? यस सर। ओके। पेन रिसेप्टर्स देखिए, रिसेप्टर्स जो हैं ये हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स इन्हीं से रिलेटेड हैं। इन्हीं को ही हम सेंस ऑर्गन्स को ही कहते हैं जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्किन फॉर एग्जांपल जो है, स्किन ये टच रिसेप्टर है। स्किन हमारी जो है ये टच रिसेप्टर है। अब इसके अंदर पेन डिटेक्शन के रिसेप्टर्स जो हैं, पेन सेंसिटिव सेल्स जो हैं, वो स्किन के अंदर होते हैं। ये शोर नहीं होना चाहिए आपकी साइड से। पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच करता है उस वक्त, या प्रेशर अप्लाई होता है। प्रेशर अप्लाई होने से आप देखते हैं कि अगर थोड़ा सा प्रेशर हो तो हमें पेन महसूस नहीं होता। अगर ज्यादा प्रेशर हो, ज्यादा दबाया जाए, तो हाथ को दबाया जाए जिस वक्त, उस वक्त हमें प्रेशर दर्द महसूस होता है। उसकी वजह क्या होती है कि पेन रिसेप्टर्स डीपली प्लेस होते हैं। पेन रिसेप्टर जो है वो स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर डीपली प्लेस्ड होते हैं, नीचे होते हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर पर ही वो स्टिमुलेट होते हैं। फिर नर्व इंपल्स पैदा होती है, वहां जो सेंसरी न्यूरॉन है उसमें नर्व इंपल्स पैदा होती है और उस सेंसरी न्यूरॉन के जरिए आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक जाएगी, और इफेक्टर्स जो है वो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होती हैं। अगर मसल्स हैं तो वो कंट्रैक्ट करते हैं और जो भी रेस्पॉन्स होता है वो परफॉर्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन टू द स्टिमुलस, इट इज कंप्लीटेड इन दिस वे। क्लियर? बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर है आपको? आमना अली, तो जैसे कि आपने बताया है कि जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी स्किन के बहुत अंदर डीपली होते हैं, अंदर होते हैं, स्किन के बहुत नीचे होते हैं जी। जिसको ज्यादा देर से, जिसको ऊपर ऑपरेट होता है रिफ्लेक्स एक्शन का देर से होता है, वो उसको ज्यादा पेन नहीं होती है, तो उसका मतलब उसका ज्यादा हमसे ज्यादा डीप होता है पेन रिसेप्टर। नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड बात नहीं है ये, वो मैंने साथ ऐड किए से प्रेशर रिसेप्टर्स के हवाले से। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन तो कब शो हो रहा है, जब हाथ गर्म चीज को टच कर रहा है तो वो स्किन के ऊपर सुपरफिशियल प्रेजेंट थे रिसेप्टर्स जो थे, हीट रिसेप्टर्स। और इसी तरह अगर कोई कांटा चुभता है पाँव में तो स्किन के अंदर सुपरफिशियल रिसेप्टर्स हैं, वो फौरन नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं जो नर्व सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कार्ड तक पहुंचती है। और याद रखें जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं इनको स्पाइनल कार्ड ही कंट्रोल करता है, और इसमें ओनली 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं।
एक सेंसरी न्यूरॉन होती है जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक ले जाती है, और दूसरी एक इंटर न्यूरॉन होती है जो स्पाइनल कार्ड के अंदर होती है, तीसरी मोटर न्यूरॉन है जो स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स तक ले जाती है, ताकि सडनली जो है वो रिस्पांस शो हो सके। बेटे क्लियर है क्वेश्चन? Any other question? I think now no question is there, and our time also ends now. Better you all are clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Allah Hafiz. Yes, sir. Allah Hafiz. Sir.